Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Okay, very fine. Thanks. Well, so connection is tested. Maybe you can tell me, am I clearly audible? Loud and clear? Yes, sir. Okay. Okay, very fine. And what about your EDA project? How did it go, people? It was a graded assignment. I don't see many submissions. Those who have done it, Madhu, yours, I can see that's there. Okay. ओके, कुछ डाउट है, कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, वो चलेगा. But did you try? What's more important is that. Okay. Okay, what I'll do is I will run this, run the code. I will show you one approach how it could have been done. Okay, I'm not saying this is the only one approach and this is the best approach. ऐसा कुछ नहीं है. One thing what we will start henceforth is, देखो, when I want to solve a data science problem, so I will want to do that in an efficient code. That is one. Another thing is it is also desired that my code should be presentable. It should be well commented, legible, and at the same time, the execution should be interactive. अभी तक जैसा आप स्क्रिप्ट फाइल में काम कर रहे थे, we will not do that. The script is good, and it is in the same analogy like you worked in Jupyter. Yeah, you use Jupyter notebook rather than a Spider or any other typical Python script. Reason being, what do you like about Jupyter? Reason being, हाँ, I'll do that, Madhu. अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. I was just talking.
Okay, here it is. Jupyter was, yes, convenient. You can run 2 3 lines of code and see what has happened. Then you can further run another 2 lines of code and again see what you have done. Then and so on. Yes, so very interactive environment. And that is something liked by Jupyter. Everybody likes Jupyter. So जैसा Jupyter notebook होता है, similarly we have our notebook. You see, if I am working with the script file, I have to deal with different panes. Sometimes I will see my script, sometimes I have to see on environment what is going on, sometimes on the console, sometimes here and sometimes there. I don't want to work that way. So here also there is a notebook file available. जहाँ से आप जैसे आप स्क्रिप्ट ओपन करते हैं ना, from that green plus sign, if we click there, you see there are, पहले भी देखा था हमने, there are several options. So this time we are not choosing script, I am choosing our notebook. So our notebook, थोड़ा थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट पहले से वहाँ पर है. We can edit that. Then there is so much text written. Now this text means nothing. This is just comment. जैसे आप markdown cell बनाते हैं, so it is just that. तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर. बट इफ़ यू ओपन यू कैन सी दैट देयर आर शॉर्ट हैंड्स बता रखे हैं उन्होंने. द शॉर्टकट्स टू इंसर्ट चंक एंड रन अ चंक. सो जैसे वहाँ पर एक सेल होता था, यहाँ पर वी आर कॉलिंग इट अ चंक ऑफ कोड. आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. हियर यू सी दिस ग्रीन प्लस सी, so that is to add chunk. Which type of chunk? You can add several types of code we can write in this notebook. We are using R, so we can insert it from here also, or you can insert by shortcut, that is Control Alt and I. So now this chunk, this is the place where we will write code. This is kind of acting cell. Execute करने के लिए we will press Control Shift Enter. क्या हुआ भाई? Anything? Somebody? अरे क्या चल रहा है? Anybody, anything? Should I continue? Yes, sir. Okay, so far we can comment inside the chunk by a hash, जैसे आप स्क्रिप्ट में करते थे, or you can comment outside the chunk, जैसे just leaving the, हाँ वो कमेंट ही है जो कुछ भी बाहर है. आप लोग नोटबुक ओपन करके ट्राई करिए, तो वो हो सकता है वो कुछ पैकेजेस बोलेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए. इज इट हैपनिंग? तो जस्ट क्लिक यस. वो पैकेजेस इंस्टॉल कर दीजिए सारे जितने भी पूछ रहे हो. तो इट विल टेक अ मिनट और टू.
Okay, so there is a rounds file. I'm reading it in the name rounds data frame, and we can check the head of rounds file. हाँ, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी. देख लेते हैं what are the first few rows of this data set. We run it by Control Shift Enter or pressing this play button here, this green arrow sign. तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा. क्या कहते हो, ठीक ठाक है ये? ऐसा कुछ डेटा सेट है आप लोगों का. ठीक है जी, down below. Okay, another chunk. What else could have been done? Maybe we should check the structure. Structure देख लेना अच्छा रहता है. So this is the structure of data set. Character, mostly characters, and finally there is a number column. It is Control Alt I, Neha. Control Alt and I. हाँ, this is a little trick with our script, our notebook. जुपिटर में भी तो बनाते पड़ते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आसान है. You just have to do B B B B B. वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, एक ही बार में पहले बना लो, बहुत सारे बाद में कोड लिखते रहेंगे. ओके, इंस्टॉलेशन हो गया है. जस्ट गिव मी अ मिनट.
Okay, people. Got a call. ओके ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग कुछ नहीं किया, वो कुछ पहले एक मैसेज देता है जस्ट टू हेल्प यू आउट। आई डिलीटेड दैट, edited the title just for fun sake, nothing in particular, जैसे फाइल रीनेम करते हैं, एंड आई एम जस्ट रीडिंग द राउंड फाइल, यही तो था। यस और नो, यही तो डेटा सेट था। ओके, बस इतना सही हुआ। देयर वाज another file, another data set which was companies, but companies was a text file. If it is a CSV file, we could have just directly read it by read.csv or read underscore csv, whichever. But there is a text file, and anybody who was able to read that text file? Yes, sir. Read delimit. Read by So, delimited, huh? yes, sir. G. So there is a direct function read.delim which is used to read any delimited file. So it can be comma separated, it can be tab separated, it can be semicolon, colon separated. यूजुअली होता तो नहीं है, but sometimes you need to read these files. In general, you will encounter CSV files, but sometimes it may happen. So sparks.txt, this is a text file, it is separated by tab. So we have used read.delim. जिन लोगों ने read.delim से read किया है, how did you find it? How did you Google. get Google. to Google? Yes, sir. और किसी का और कोई हथियार? Not in good health today, people. Net, Google. So well, this is good that you people are into this habit. So this should happen, guys. ये होना चाहिए. You should be in a habit of, searching and looking for things by yourself. There is a very, very relevant illustration about data scientists. You want to see that? Here it is. This is so true about data scientists. So you should be in a habit, okay? You are learning R, Python, and then there will be Hadoop and Hive and Java and whatnot, and nobody can be master of all the languages. These are practically infinite languages.
So you don't, nobody can know everything. The good part is you don't have to know everything. You just have to know what a particular job has to be done. You can look for codes, you can look for methods, so be in that habit. ठीक है जी, चलो चलो वापस आते हैं. नाउ टेल मी, आप लोगों को समझ क्या आया? अभी हमने डेटा सेट रीड कर लिया है, क्या देखूं इसमें? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है? अरे हम एनालिसिस करने पहुंच गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था आप लोगों ने? कौन लोग हैं ये, क्या करना चाहते हैं? ओके. There is an asset management company which is Spark Funds. They want to invest in some startups. तो ऐसा क्यों करते होंगे जी? क्या जरूरत पड़ गई पैसे लगाने की? Yeah, obviously now currently this is a small business, and if there is potential in this business, it will grow. And startups, usually startups have proven to be multifold growth items. What comes next? They want to invest into some startups, but they have some constraints. They cannot directly go ahead. They have two major constraints, and okay, very practical one. Number one says they want to invest only between 5 to 15 million USD per round of funding. Very genuine concern. सही बात है, 15 मिलियन पर राउंड से ज़्यादा नहीं करना चाहते. दे डोंट हैव कैपेसिटी. 5 मिलियन पर राउंड से कम भी नहीं करना चाहते, बिकॉज फ्रूटफुल नहीं होगा. यस और नो, इन्वेस्टमेंट करें तो ढंग से तो करें.
जस्ट फॉर नेम सेक इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, तो देयर इज अ लोअर लिमिट ऑल्सो, सो दैट इज वन कंसर्न. Second is they want to invest only in English speaking countries. Again, very genuine concern, very practical people. Between the startup and the investor, there should be ease of communication. So communication is very necessary. So they don't want to go to countries where English is not a common language. How do we know which country is English speaking? So for our kind of analysis, we are provided with a list of countries where official language is English. रीड करने का जरूरत नहीं है, वो हम मैनुअली भी देख लेंगे. चलो इतनी बात समझ आती है. नाउ सेज अगर उनके constraints, okay, they have certain constraints, they cannot go beyond these limits, but if those constraints are settled, now it says what is the strategy. What is the strategy? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है. वो कह रहे हैं हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. वी विल गो वेयर अदर इन्वेस्टर्स आर गोइंग. वही कंपनीज, वही सेक्टर्स, वही कंट्रीज, हम भी चले जाएंगे जहां अदर लोग, बाकी इन्वेस्टर्स जा रहे हैं. यहाँ तक भी ठीक है जी. नए नए इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते. Then I left you with a hint that this is a data set which is taken from crunchbase.com. You guys have heard of Crunchbase? What is Crunchbase? It is an online platform. It records all the public data of new startups and who has been investing there. So this data is taken from crunchbase.com. And when I am saying that this is taken from crunchbase.com, the public records, you can assume that all the anomalies possible, एक डेटा में जितनी बीमारी होती हैं जो हमने बात की भी है, वो सब निकलेंगे यहाँ पे. So okay, finally. These are the two data sets which are provided, companies and rounds. Some typo here, you can ignore that. Now, how we are supposed to do this analysis further? We have to identify some sectors, countries, and suitable investment type. Investment type because there are different types of investments. Equity funding hota hai, venture funding, this type, and debt funding, this and that. Several kinds of funding there are. So we have to choose a type which is suitable to our client, Spark funds, because they have constraints. Another one is country analysis. We have to identify countries also. Presentation part, you don't know to create graphs, so you can ignore that, or maybe you can try that with अच्छा अभी टैब्लो वगैरह कुछ हुआ नहीं आप लोगों का, आई थिंक. हाँ जी, इतना मसाला था आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. एनालिसिस आप लोगों ने कर डाला, जिन्होंने कर डाला. जरा देखे तो ये डेटा सेट क्या क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं. देयर इज अ कंपनीज फाइल.
हाँ जी, देखने में कुछ ऐसा लगता है। क्या डेटा है यहाँ पर? There is a permalink. What is permalink? अरे SQL हो गया, पाइथन हो गया। What is permalink? गैस किया नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस किया नहीं है। हाँ, परमालिंक इस कंपनी का, जो सपोज दिस इज अ कंपनी, दिस दिस इज अ स्टार्टअप, नेम इज फेम। सो टोल्ड यू आई हैव टेकन इट फ्रॉम crunchbase.com। सो crunchbase पे इस कंपनी का कोई प्रोफाइल बना होगा ना, उसका यूआरएल है ये। So that is link. Then there is company name, होम पेज यूआरएल, वो कंपनी का वेबसाइट होगा। देन देयर इज कैटेगरी लिस्ट, किस कैटेगरी में एक्टिव है ये स्टार्टअप। तो देर आर एंड देर कैन बी मोर देन वन कैटेगरीज, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे बताया उन्होंने? मेन कैटेगरी एंड देन by pipe symbol they have segregated it and they are mentioning subcategories. This way they have mentioned it. Remember प्राइमरी की, फॉरेन की, कुछ है हुई थी बात ऐसी सीक्वल में। What should be acting as primary key of this dataset? समझ आती है बात? और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, permalink should be acting as primary key. Why not name? Why not name? हाँ जी, देर इज अ चांस कि दो स्टार्टअप सेम नेम के हों, हो भी सकता है। Why not home page URL? होम पेज यूआरएल, होम पेज यूआरएल क्यों नहीं? एक्चुअली देखिए, हाँ गलती से दिखा दिया मैंने। होम पेज यूआरएल चलो सेम तो नहीं हो सकती, दो लोगों के लिए वेबसाइट तो अलग अलग ही बनेगी, नेम सेम भी हो तो, बट मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते। ठीक है, so we will go ahead with permalink. Next is their status, whether they are operating या inactive हो गया है, या startups सेल आउट कर दिया है उन्होंने किसी को, has been taken over by something, whatever जो भी status है, that is given. Then there is country code. Country code, for each startup there is a country code, which country this startup is operating from. But we do see that some missing values here, again blanks.
country code. Then there is state code, region, city, okay, within the country where this company has been operating from. And finally, founded it, the date of foundation date. This much information in company's dataset. Then there is rounds file. What is the information here? The rounds dataset contains data of funding rounds which have happened for various companies. तो किस कंपनी को फंडिंग मिला? दे आर रिकॉर्डिंग इट बाय परमालिंक. समझ आ रहा है? Foreign key. Remember? Now permalink is acting as foreign key here in this. Yes or no? Okay. Funding round permalink. They have generated a link for this funding round also. Then there is funding type. What type of funding? There are different types of funding depending upon the depending upon the legal constraints and the kind of agreement to which investor and startup has come to. So this is what we will have to work upon. Anyway, then there is funding round code. Okay, there are funding rounds are coded as A to H. So A, B, C, D, whatever coding what they are giving to the funding round. So that is there, and somewhere it is missing. Then there is funded at the date of funding. जिस date को ये funding हुआ है. And last but not the least, raised amount in USD. The amount of funding raised in this round, that is in USD, and at the same time we notice that there are some missing values. ठीक है. Now what else that since you were doing your first project, इस तरह का I don't think आप लोगों ने ऐसा कोई project करके देखा होगा. मशीन लर्निंग तो ठपाक से 4 लाइन का कोड लिखना होता है, मॉडल बन जाता है. सही बात है ना? So leave machine learning. What about you? Can you learn for yourself? So that is why I have left you with these kind of checkpoints. What are these checkpoints? They are going to, if you try to answer these questions one by one, they will point you in the right direction. That how you should go ahead with this analysis. So let's try to answer these questions one by one, and maybe we will end up with, a decent analysis.
Yes, you are actually the case. But anyway, not actually, everyone. Sore throat, the biggest enemy for a trainer. बोलने का ही काम है और बोला ही नहीं जा रहा. अबे नहीं, तुम चले छुट्टी करने पहले. बैठे रहो सारे के सारे. आई मीन ट्राई मतलब हाँ, बैठे मत रहो, करते रहो मेरे साथ साथ. Let's try to answer these questions one by one. It is saying how many unique companies are present in rounds 2. बहुत सारे राउंड्स हुए हैं, बहुत सारी फंडिंग हुई है. कितनी ओवरऑल कितनी कंपनीज हैं जिनका डेटा है हमारे पास? ऐसा ही है ना क्वेश्चन? हाँ, देखने में देर आर 1,15,000 के आसपास राउंड्स हुए हैं. But anyway, you won't be able to sign the lease without. Somebody opined, but don't know what was that. Couldn't make sense of that. Anybody? 90,000 something. और कोई? Anybody else? कैसे किया हरीश? सर यूनिक कोड यूज करके किया है. यूनिक ब्रैकेट में राउंड्स डॉलर कंपनी प्राइम लिंक. ओके. हाँ जी, युक्ति, आरुषि एंड शिवाली, फाइनली वी आर टॉकिंग. यही दिखाने ला रहा था. ये बहुत जल्दी भाग के गए. क्वेश्चन 1 सॉल्व करने है ना. राउंड्स कंपनी परमालिंक तुमने शायद डायरेक्ट कर दिया होगा. मैं 2 स्टेप्स में कर रहा हूँ. पहले एक वेरिएबल बनाया जे और उसकी लेंथ काउंट कर लूँ जे की, तो पता चल जाएगा जे की लेंथ कितनी है. हाँ जी, शिवाली, युक्ति एंड आरुषि, वाह, वुमन पावर ऑल टुगेदर, एंड नेहा. क्या गलत कर रहा हूँ मैं? हाँ जी, अभी अपर केस लोअर, रिमेंबर अपर केस लोअर केस मिसमैच हो सकता है, एज इट हैपन्स है इन दिस डेटा सेट. सुनील, इट इज बिकॉज व्यू का वी कैपिटल होना चाहिए. देख पाए आप लोग? रिमेंबर अपर केस लोअर केस, ये देख रहे हो? ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. देर इज समथिंग कॉल्ड काउंटर विद क्यू, अ स्टार्टअप नेम काउंटर. पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंटर कह रहे हैं अपना, चलो जो भी है. लेकिन ये दोनों एक ही कंपनी है. इट इज जस्ट अपर केस एंड लोअर केस प्रॉब्लम. ठीक है जी. तो क्वेश्चन 1 तो करेंगे आप, लेकिन पहले लोअर केस कर लेंगे इसको. एंड व्हेन आई रन दिस, नाउ इट इज
giving me a proper count. क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी क्या कहता है? अब क्वेश्चन बताते जाओ आप लोग जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Unique companies and companies file. अच्छा, कंपनी फाइल में यूनिक कंपनी कितनी है? ठीक है, हाँ जी, तो कितनी है अब तो पता चल गया हमें भाई। एक तो अपर केस लोअर केस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो केस कॉमन हो, और बाकी तो फिर सिंपल है, लेंथ यूनिक। तो कंपनीज में परमालेंथ को लोअर केस कर लिया, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ यूनिक परमालिंक कॉलम पता चल जाएगा। और ऐसा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनीज डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम यूनिक की तरह यूज किया जा सकता है? यूनिक की या प्राइमरी की, वही बात है। तो वो तो अभी सोचा था हमने, लेकिन कोड में कैसे लिखोगे इसे? Anybody? Any idea? अरे क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लिया था, वो तो देखते से ही समझ आ रहा है। कंपनी डेटा फ्रेम में कौन सा है यूनिक की? प्राइमरी की, जो मैं पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। वो तो प्राइमरी की देख के समझ आता है कि परमालिंक ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कोड में क्या लिखूँ? सर नल वैल्यू से कि मतलब इस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है एज कंपेयर टू नेम, सो इसे प्राइमरी की तरह कंसिडर करेंगे। ओके ओके, अच्छा है। मैं तरीका बता रहा हूँ, ये देखो, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये क्यों बताते जा रहा हूँ मैं आप लोगों को? ये बोर तो नहीं होते हो उससे? ये जो तुम्हें हाथ पकड़ के लिखवाता हूँ ना ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब क्वेश्चन हो जाता है ना तो समझ नहीं आता। कंपनी डेटा ऐसा, अगर तुम्हारे टेक राउंड में कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हो जाए, कैसे बताओगे किसी डेटा सेट में कि कौन सी है प्राइमरी की? कैसे बताओगे? सो आइडिया बता रहा हूँ, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड। आई एम यूजिंग डिप्लायर। डिप्लायर में देर इज अ फंक्शन कॉल्ड एंड डिस्टेंट, और ये क्या करता है? ये वही करता है जो लेंथ और यूनिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लेंथ और यूनिक? नंबर ऑफ यूनिक एंट्रीज काउंट कर रहे हैं ना परमालिंक में। ये कितने हैं? 66368, यानी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस डेटा सेट। यस और नो? यार जितने नंबर ऑफ रोज उतनी ही यूनिक वैल्यूज, तो इसका मतलब हर रो में इट इज अ यूनिक वैल्यू। यस और नो? तो ना तो मिसिंग है ना डुप्लीकेट हो रही है। तो प्राइमरी की कंपनी परमालिंक एक्ट कर सकता है कंपनीज में, बाकी और कोई क्यों नहीं कर सकता? आओ देखते हैं क्यों नहीं कर सकता। कंपनी में परमालिंक काम कर जाएगा, वो तो दिखाई दे रहा है।
लेकिन क्या सिर्फ ये कर सकता है या कोई और भी कर सकता है? अगर वो देखें, इफ आई रन दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? शायद देख के समझ आ जाए। एंड डिस्टिंक्ट जो नाम है इसका नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज काउंट करके बताता है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एस अप्लाई कर दो कंपनीज डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स पे। मैंने मतलब कॉलम बताया ही नहीं। अगर मैं इसे बताता ही नहीं ये 4 कॉलम, तो उन पे करता। मैंने कॉलम बताया नहीं तो उसने पूरे डेटा सेट पे कर दिया। देख पा रहे हैं? पता चल रहा है? सिर्फ परमालिंक एक ऐसा कॉलम है जिसमें हर रो में यूनिक वैल्यूज चल रही हैं। नॉट इवन नेम हैज दैट मैनी यूनिक वैल्यूज as that is as there are number of rows. Not even home page URL. ठीक है जी, यानी कंफर्म हो गया। Who can act as unique key? Only permalink, nobody else. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कर ले कोई, किसी डेटा सेट में कैसे देखोगे कि प्राइमरी की कौन सा कॉलम है? नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज अगर काउंट कर पाए हम हर कॉलम की तो पता चल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर्ड। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 क्या कहता है? देखते रहना उसे टेबल को। क्वेश्चन नंबर 4 says, are there any companies in round file which are not present in companies? मतलब वो कह रहा है जितनी आपके पास कंपनीज डेटा सेट में कंपनीज हैं, कंपनीज उतनी ही हैं राउंड फाइल में भी, लेकिन क्या ये वही कंपनी है? समझ रहे हो? जो मेरे पास कंपनीज का इंफॉर्मेशन है और जो मेरे पास राउंड्स का इंफॉर्मेशन है, क्या ये दोनों कंपनी सेम ही हैं या तो वहाँ कुछ और चल रही है, यहाँ कुछ और चल रही है? कैसे कर सकते हैं? आई मीन अगर जस्ट आइडिया भी दोगे तो चलेगा, कोड नहीं पता हो तो भी समझता हूँ मैं। आइडिया क्या लगाओगे? अगर आइडिया आ गया तो कोड तो ढूंढ लोगे अपने आप। कंपेयर कंपेयर कैसा करोगे? हाँ, एंटी जॉइन, अच्छा। देखो एक गलती तो मैं क्या कर सकता था कि अपर केस लोअर केस, तो वो तो ठीक कर लिया मैंने पहले। तो केस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, दोनों लोअर केस में। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है, दोनों चीज़ें करके देख सकते हो। इससे पहले कि मैं इसका आंसर करूँ, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, बिकॉज इसका आंसर अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोनों डेटा सेट को मर्ज करके एक मास्टर डेटा फ्रेम बना दो। तो मर्ज फंक्शन आप लोगों को मालूम है? मर्ज फंक्शन या एसक्यूएल में जॉइन कहते हो, एक ही तो बात है ना? पाइथन में मर्ज होता है, सीक्वल में जॉइन बोलते हैं, टैबल्यू में ब्लेंडिंग बोलेंगे, बात काम वही कर रहे हैं। वी आर merging two data sets on the basis of one common column, one set of primary key, foreign key relation। तो वही मर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आई एम डूइंग इट समथिंग। मर्ज फंक्शन आर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, हेल्प फंक्शन आप चेक कर सकते हो। आई एम क्रिएटिंग मास्टर डेटा फ्रेम मर्ज राउंड्स डेटा सेट विद कंपनीज
हेल्प में आप देखोगे मर्ज कैसा काम करता है आर में, इट इज कंसिडरिंग दिस राउंड सेट एक्स डेटा सेट, दिस इज वाई डेटा सेट, और नीचे मैं बता रहा हूँ कि एक्स डेटा सेट में कॉलम का नाम क्या है, वाई डेटा सेट में कॉलम का नाम क्या है। यहाँ तक ठीक है? देख लो, हेल्प देख लो मर्ज का, इनफैक्ट मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ डिफरेंट हो जाए। हेल्प डॉक्यूमेंट चेक करें, वो दिखा रहा है इस तरह से एक्स और वाई दो डेटा सेट होंगे और ऐसे करके तो मर्ज हो जाएंगे। कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकता हूँ मैं बाय एक्स बाय वाई। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल। यहाँ पर कुछ ऑल करके आ रहा है। हाँ जी, क्या बता रहा है ऑल? थोड़ा सा पढ़ के देखोगे, समझ आ रहा है ये क्या करता होगा? नहीं, नॉट शुड बी द सेम। हाँ, वैल्यूज शुड बी द सेम। यार परमालिंक कॉलम का नाम डिफरेंट है, यहाँ पर कंपनी परमालिंक कह रहे हैं, यहाँ पर कोई कोई और परमालिंक कह रहे हैं, लेकिन वैल्यूज तो वही है ना। इस कंपनी का जो प्रोफाइल बना होगा क्रंच बेस पे, उसका लिंक तो वैल्यू तो वही है। अब दोनों लोअर केस में भी हैं तो काम हो जाना चाहिए, ठीक। हाँ, एक नया पैरामीटर मैं देख रहा हूँ, देयर इज अ पैरामीटर ऑल। ये पता है क्या है? रिमेंबर, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब होते थे। तो ये वही पैरामीटर है। अगर मैं बोलूं ऑल एक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट की सारी वैल्यूज चाहिए, ऑल एक्स इज ट्रू। अगर मैं बोल दूं ऑल वाई ट्रू, ऑल वाई इक्वल टू ट्रू, तो मतलब हो गया राइट जॉइन लगाना चाहता हूं। समझ आने लगी बात? और अगर मैं बोल दूं ऑल एक्स भी ट्रू या ऑल वाई भी ट्रू, या मैं सीधे बोलूं ऑल ट्रू, ऑल इज ट्रू मतलब इनर जॉइन नहीं, फुल आउटर जॉइन। यस, इट इज फुल आउटर जॉइन। अगर मैं बोल दूं ऑल इज इक्वल टू ट्रू, यानी लेफ्ट के भी सब कुछ चाहिए, वाई के भी सब कुछ चाहिए, तो जितने परफेक्ट मैच मिलेंगे वो मर्ज हो जाएंगे। जहां परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा वहां पर मिसिंग 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 आता चला जाएगा। ऐसा ही तो होता था। चलो, गुड टू सी। कितना कराया सीक्वल आप लोगों को? ओके, एंड बेंगलोर में गगन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, ये गगन ही कराता है। चलो, गुड, नाइस। पंकज, कॉलम बाइंड मत समझो इसको। सी, दिस इज नॉट कॉलम बाइंडिंग। कॉलम बाइंडिंग की मेरे पास तो कुछ भी कॉलम आ जाए नया, मैं वो बाइंड कर दूंगा। We are calling it merge. I am calling it merge deliberately. I am using a different word. So this is not just any column binding. This is merge on basis of a primary key foreign key relationship, not just like anything. चलिए, ठीक है। मैं ये सब करके कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ? मैं एक काम दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मैं all is equal to
फॉल्स कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या समझ आ रहा है? समझ गए? इसका मतलब हुआ इनर जॉइन। सही बात है। अब ये इनर जॉइन हुआ। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूं आपको। क्यों कर रहा हूं मैं ये इस तरह से? थिंक अबाउट इट, अगर इनर जॉइन लगा और राउंड्स और कंपनीज में कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला परमालिंक, इसका मतलब वो रोड ड्रॉप हो जाएगी? यस और नो? इनर जॉइन का तो ये मतलब होता है, अगर परफेक्ट मैच नहीं मिले तो उस डेटा को छोड़ देना। तो नंबर ऑफ रोज कम दिखेंगे मेरे को आने वाले डेटा में। चलो देखते हैं। मैं कुछ देखना चाह रहा था, लेकिन क्या देखता हूँ फाइनली? क्या देख रहा हूँ? अगर मैच नहीं मिलता तो रोज ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन हुई नहीं है। इसका मतलब सारे परमालिंक मैच हो गए। यस और नो? और जब सारे परमालिंक मैच हो गए, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आ गया इसका। सही बात है। क्या लिखेंगे आंसर इसका? क्या लिखूं आंसर में इसके? यूज डिनर जॉइन deliberately. Deliberately. If data loss, तो पक्की बात है कि मिसमैच है। अदरवाइज परफेक्ट मैच। डेटा लॉस नहीं हुआ तो परफेक्ट मैच हो रहे हैं, तो हो तो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा टेबल 1 कंप्लीट होता है। आप लोग कोड कर रहे हैं साथ साथ, या मैं भेजूं आप लोगों को? You guys coding along with me? कौन सी वाली शीट? जो अच्छा, ये वाला जो करंट नोटबुक। ठीक है। सर मेरे मास्टर फ्रेम में ऑब्जर्वेशन 0 आ रहे हैं, वेरिएबल्स 15 है मगर ऑब्जर्वेशन 0 आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन 0 आ रहा है बिकॉज किसका क्वेश्चन था ये? जरा माइक ऑन रखना। हरीश, इज इट हरीश, योर? यस सर। Okay, Harish, you are host now, so please post the screen. Post the screen. स्क्रॉल अप और ऊपर स्क्रॉल करना जरा, कि कहाँ से है।
रीड कैसे किए हैं डेटा? जरा दिखाना ऊपर दोनों डेटा सेट, रीड डॉट सी एस वी एन, रीड डॉट डेली, यही है या कुछ और कर दिए हैं? सर ये वाला रीड डिलीम, रीड CSV है। ये तुम्हारा ये इक्वल टू साइन है क्या? एरो तो नहीं लग रहा। हाँ सर। रन कर लो दोबारा। ओके सर। सर अभी भी कंपनी परमानेंट एंड बाय वाई। This should not have happened. अपर केस लोअर केस, अभी वो प्रॉब्लम तो नहीं है? वो रन कर चुके हो? नहीं। हाँ सर कर चुका हूँ यहाँ पे। जरा बोलो। हाँ डेटा सेट ओपन करना, लेट्स व्यू द डेटा सेट, बिकॉज ये व्यू वाला करते हैं जरा दोनों डेटा सेट। बाकी ये लोग, बाकी सबका हो रहा है ठीक ठाक? और किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आया? ये देख रहे हो अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम अभी भी है, हुआ नहीं है वो ठीक। परमालिंक कॉलम देखो, परमालिंक सभी भी कुछ अपर है कुछ लोअर है, कुछ ऐसा चल रहा है। राउंड्स देखते हैं राउंड्स में क्या सर हालचाल है। सभी लोअर हो गए हैं। अरे राउंड राउंड फाइल में तो हो गए हैं, लेकिन कंपनीज में अभी भी अपर केस लोअर केस है भाई, ये कह रहा हूँ। ओके ओके अगर वहां पर अपर केस हुआ और ये तुम्हारे बेसिक लोअर केस हो, मैच नहीं हुआ ना फिर। ओके सर। तो इसको भी लोअर केस में ले जाओ, ठीक है? ओके सर। चलो ओके। ठीक है हरीश, ड्रॉप कर दीजिए स्क्रीन। ओके सर। सब कैसे ये कैसे ये करते हैं? अरे ठीक है, मैं छीन लूंगा अपने आप, रहने दे। चल ठीक है। Okay, coming to sheet number 2, question number 1. First table is answer. पहला टेबल आंसर कर दिया हमने पूरा पूरा। दूसरा टेबल, and there are some questions. पूछता है एवरेज फंडिंग अमाउंट ऑफ वेंचर टाइप। अच्छा रिमेंबर, हमारे को पर राउंड फंडिंग पे कांस्टेंट था। पर राउंड जो फंडिंग करने का है क्लाइंट को, वो 5 से 15 मिलियन के बीच होना चाहिए। तो वही देखना चाह रहे हैं, विच टाइप ऑफ फंडिंग इज सुटेबल फॉर आवर क्लाइंट, जिसकी एवरेज फंडिंग हमारे पैकेट में आ जाती हो। हाँ जी, कैसे करेंगे कोड इसको? हाउ डू वी कोड दिस? हाउ डू वी कोड दिस? कैसे किया है आप लोगों ने? किसी ने तो किया होगा।
ओके, ओके, see, most of you are doing it this way, but finally, yes, Yukti. करने को कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैसे ठीक ही है। हमसे बोला है एवरेज फंडिंग निकालने हैं, तो फंडिंग इज इक्वल टू एवरेज, फंडिंग टाइप इज इक्वल टू एवरेज। इस बात पे हम फिल्टर कर सकते हैं, यू नो विच फंक्शन या फिल्टर फंक्शन। तो वो डेटा निकल गया जहाँ पर फंडिंग टाइप सिर्फ एवरेज होनी चाहिए, फंडिंग टाइप वेंचर होनी चाहिए। और जब वेंचर फंडिंग का डेटा निकल गया तो उसमें मैं मीन निकाल लेता हूँ रेस्ड अमाउंट यूएसडी का। तो वेंचर का पता चल गया एवरेज फंडिंग, फिर ऐसे ही एंजल की निकाल लेंगे, फिर सीड की निकाल लेंगे। बट यही चलेगा क्या? अभी उसने 4 बातें पूछी हैं, अगर वो 20 बातें पूछ रहा होता तो ऐसे ही करते रहते क्या हम? समझ रहे हो? रिमेंबर ग्रुप बाय समराइज। हम बुला लें अगर डीप लायर को, डीप लायर तो खैर मैं पहले अटैच कर चुका हूँ आई थिंक समवेयर। आई एम कॉलिंग इट टाइप वाइज ग्रुपिंग। मास्टर डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर रहा हूँ एक कैटेगोरिकल वेरिएबल पे। कौन सा कैटेगोरिकल वेरिएबल? फंडिंग टाइप। तो जस्ट इमेजिन, दिखेगा नहीं लेकिन इमेजिन करो, ये मास्टर डेटा फ्रेम ग्रुप हो गया हर टाइप की फंडिंग के लिए। हर टाइप की फंडिंग के लिए उसमें अंदर 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 बिहाइंड द स्क्रीन ग्रुप बन गए हैं, दिख नहीं रहे लेकिन बन गए। और समराइज मैं कह रहा हूँ, समरी में क्या दिखाओ? मीन ऑफ रेज्ड अमाउंट यूएसडी। एवरेज ऑफ अमाउंट, यही तो देखना था। इफ आई रन दिस, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा ऐसा। हाँ जी, क्या हो गया ये? बिकॉज रेज्ड अमाउंट यूएसडी में देयर वर मिसिंग वैल्यूज, बहुत सारे मिसिंग वैल्यू थे ना। मैं कह रहा हूँ मीन कैलकुलेट कर दो, वो कह रहा कैसा करूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पर वैल्यूज कहाँ हैं। हाँ जी, क्या करना चाहिए? देयर इज पैरामीटर फॉर दीज काइंड ऑफ, ऐसे फंक्शंस के लिए जब भी ऐसा फंक्शन होगा जिसे मिसिंग वैल्यू से दिक्कत होगी, उस फंक्शन के लिए ऐसा पैरामीटर भी मिल ही जाएगा। na.rn इज इक्वल टू ट्रू बोल दूँ अगर, तो अब वो एवरेज कैसा कैलकुलेट कर रहा है? मिसिंग वैल्यूज को छोड़ के।
डन विद दिस। मिसिंग वैल्यूज़ को छोड़ के अब उसने जो अवेलेबल डेटा था उसके हिसाब से उसने फंडिंग बता दी है कि हर टाइप की फंडिंग में कितना कितना एवरेज आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आंसर हो गया, एक ही बार में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 एंड 4। पता चल गई हर टाइप की फंडिंग में एवरेज कितना कितना है। क्वेश्चन आता है 5th, क्या कहता है कि हमारे स्पार्क फंड के अकॉर्डिंग कौन सी फंडिंग टाइप सबसे ज़्यादा सुटेबल है। इन सारी में से कौन कौन फंडिंग हमारे टाइप हमारे लिए सुटेबल है। हाँ जी, कौन से सुटेबल है, कौन से सुटेबल है। विच इज़ मोर, जितना ज़्यादा एवरेज अमाउंट उतना अच्छा है। नहीं, हाँ रिमेंबर हमारा एक कांस्टेंट था, हमारी प्रॉब्लम थी हमारे क्लाइंट की कि वो पर राउंड फंडिंग 5 से 15 मिलियन के बीच ही करना चाहते हैं। था ना ये प्रॉब्लम उनका, एक सर्टेन अमाउंट से ना कम जाना चाहते हैं ना उससे ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो हाँ, यूजिंग हमारी कंडीशन वो तो लगा देंगे। मेरी प्रॉब्लम कुछ और है फ़िलहाल, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। किसने तो बोला था, किसी ने तो बोल दिया था, नेहा वेंचर, शिवाली वेंचर, इन लोगों ने बोला सबसे सुटेबल टाइप फंडिंग वेंचर है। क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा, ये इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमने एवरेज निकाला है, यहाँ पर वो उन्होंने देखा होगा, क्या देखा है आप लोगों ने, ये कंडीशन देख ली होगी आप लोगों ने मेरे ख्याल से 5 to 15 मिलियन की, और उसमें मेरे ख्याल Yes, से sir. वेंचर शायद उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ 11 मिलियन। तो वेंचर में एवरेज राउंड एवरेज फंडिंग इज 11 मिलियन, विच सीम्स वेल, अच्छी बात है, सुटेबल लग रही है हमें। सीम्स लाइक सुटेबल वन। देखो कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं ये देखूँ कि मिसिंग वैल्यूज़ हमने क्या देखा था कि कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं एवरेज अमाउंट, ये फंडिंग अमाउंट में, देख लेते हैं कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। हाँ जी, कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। नियरली 20,000। अरे सही बात है, तुम्हारे सामने ही है यार। परसेंटेज में बात करूं, आपका जो मास्टर डेटा है
उससे अगर फ्रैक्शन में बात करूं तो दिस इज 17%। हाँ, टोटल डेटा 1,15,000 रोज का है, उनमें से 20,000 रोज 20,000 वैल्यूज मिसिंग है रेस्ड अमाउंट यूएसडी में। आप कह रहे हो ये 20,000 रोज को तो करो क्या, na.rm इज इक्वल टू ट्रू। 17% डेटा को छोड़ करके आप कह रहे हो कि हमने निकाल लिया एवरेज और उसके हिसाब